गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। एक ऐसा सेगमेंट जो आपके सामने प्रस्तुत करता है इतिहास से संबंधित वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, lecture के अंत में we will share some very critical practice questions with you. आप अवश्य ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं 23 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े तमाम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1934 वर्ष से, when Indian environmentalist and social activist चंडी प्रसाद भट्ट was born, अर्थात भारतीय पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म आज के ही दिन हुआ। He is an Indian Gandhian environmentalist and social activist, जिनका संबंध उत्तराखंड राज्य में स्थित चमोली डिस्ट्रिक्ट से है। उन्होंने अन्य एक्टिविस्ट्स के साथ सहयोग में सर्वोदया मूवमेंट एंड गांधीयन कैंपेन्स ऑफ भूदान एंड ग्रामदान का आयोजन किया। He also campaigned for economic development of villages and for fighting liquor abuse throughout the state of Uttarakhand. By the year 1964, he had instituted the Sholi Gram Swarajya Mandal, अर्थात सोसाइटी फॉर विलेज सेल्फ रूल। इसका उद्देश्य था सभी विलेजर्स को इन द रीजन ऑफ गोपेश्वर इन उत्तराखंड ऑर्गेनाइज करना फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज near their hometowns by engaging them in forest-based industries. इनमें से कुछ employment activities थी, such as making wooden utilities from ash trees and gathering and marketing herbs for Ayurvedic medicine purpose. In the year 1973, he mobilized the Forest Wise Society members and villagers into the collective चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, जिसे हग द ट्रीज मूवमेंट भी कहा जाता है, to prevent deforestation in the villages and forests of Uttarakhand state, had aimed to force the government to revise some of their unfair forest policies. और चिपको आंदोलन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि किस प्रकार इसको स्पीयर हेड किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। In the year 2003, Chandi Prasad Bhatt was appointed as a member of the National Forest Commission, जिसका उद्देश्य था to review all existing policies and legal frameworks relating to forest management, and it eventually submitted its report to the government in the year 2005. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड विलेज इकोनॉमी के रिवाइवल में अपने सभी योगदानों के लिए चंदी प्रसाद भट्ट was awarded the Raymond Magsaysay Award for Community Leadership in the year 1982. इसके पश्चात इन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया। He is considered as one of India's first modern environmentalists. He was also the recipient of Gandhi Peace Prize in 2003. और कुछ किताबें भी इनके द्वारा पब्लिश करी गई हैं, जिनमें से लीडिंग नाम है The Future of Large Projects in the Himalaya. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। So this is associated with 1953, when Indian politician श्यामा प्रसाद मुखर्जी had passed away, अर्थात भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन आज के ही दिन हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी was an Indian politician
lawyer, and academician who served as the Minister for Industry and Supply in Prime Minister Jawaharlal Nehru's cabinet. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में भी कार्यभार संभाला था. He joined the Hindu Mahasabha in 1939 in Bengal and then became its acting president the very same year. He was elected as the president of Akhil Bharati Hindu Mahasabha in 1943. उन्होंने 1946 में बंगाल के विभाजन की मांग करी थी to prevent the inclusion of Hindu majority areas in a Muslim-dominated East Pakistan. Prime Minister Jawaharlal Nehru had inducted him into the interim central government as a minister for industry and supply on 15th August 1947. However, later he along with K.C. Niyogi had resigned from the cabinet in 1950 as he was opposed to the 1950 Delhi Pact with Pakistani Prime Minister Liaquat Ali Khan. The 1950 Delhi Pact, which is also often referred to as Liaquat-Nehru Pact, was the bilateral treaty signed between India and Pakistan in which refugees were permitted to return for disposing their property as well as certain minority rights were confirmed. After resignation from his post, later Syama Prasad Mukherjee went on to establish the Bharatiya Jan Sangh on 21st October 1951 in Delhi, and then he also became its first president. Bharatiya Jan Sangh एक ऐसा दल था which became the predecessor to the modern day political party भारतीय जनता पार्टी, और 1952 के चुनाव में the Bharatiya Jan Sangh BJS also won 3 seats in the Parliament of India. इसके अलावा in the year 1942 he had also succeeded Dr. M.N. Mukherjee to become the president of the Buddhist Mahabodhi Society. Syama Prasad Mukherjee was also strictly in opposition to the Article 370 क्योंकि उनके अनुसार it was a complete threat to national security and unity. वह 1953 में कश्मीर गए और उस कानून का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल करी जिसने भारतीय नागरिकों को राज्य के भीतर बसने से रोक दिया था और यह अनिवार्य बना दिया था कि वह अपना आईडी कार्ड सबमिट करें if at all they wanted to enter the state. He was arrested on 11th May while he tried to cross the border into Kashmir in defiance of the existing laws, और उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई. और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं अपना अगला फैक्ट आज का. ये है कि किस प्रकार आज के दिन यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस आज के दिन हर वर्ष मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस was designated by the United Nations General Assembly's Resolution 57-77 during December 2002 with the objective to celebrate the value and virtue of public service to the community. The United Nations Economic and Social Council, जिसे ECOSOC भी कहा जाता है, established that the United Nations Public Service Awards will be bestowed on Public Service Day for contributions made to the cause of enhancing the role, prestige and visibility of public service. इस दिवस का एक और महत्व भी है, वो ये है कि it marks the anniversary of the date when International Labour Organization had adopted the Convention on Labour Relations pertaining to public service in 1978. This convention is a framework for determining working conditions of all civil servants across the world.
हर वर्ष इस दिवस की कोई ना कोई अनोखी थीम अवश्य होती है और अगर बात करें वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 की, सो द थीम इज इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये है कि किस प्रकार आज के दिन एक और दिवस सेलिब्रेट किया जाता है विच इज नोन एज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे। आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस विश्व भर में हर साल मनाया जाता है। द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड टू commemorate the day when International Olympic Committee IOC was founded in the year 1894। सबसे पहली बार यह दिवस मनाया गया था 23 जून 1948 को by National Olympic Committees of various countries across the world। और अगर बात करें 23 जून 1894 वर्ष की, तो delegates from 12 countries had assembled in Paris to support Pierre de Coubertin's proposal to revive or restart the Olympic Games। और इसके साथ एक आधुनिक ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत हुई। Eventually this laid the foundation for establishment of the International Olympic Committee। विश्व ओलंपिक दिवस का लक्ष्य जेंडर, एज और एथलेटिक क्षमता के किसी भी भेदभाव के बिना दुनिया भर में विभिन्न लोगों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस दिन की शुरुआत विभिन्न तारीखों के माध्यम से आम जनता में स्वास्थ्य और खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करी गई है। इस संदर्भ में ये जानना भी आवश्यक है that the International Olympic Committee is a non-governmental sports organization that is based in Lausanne in Switzerland। और इसका संगठन पेरे डे कॉबर्टन एंड डेमेट्रियोस विकेलास के द्वारा 1894 को किया गया था। ये वह अथॉरिटी है that is responsible for organizing modern summer and winter Olympic Games। यहाँ विशेष रूप से आप नाम याद रखिए पेरे डे कॉबर्टन का because he was the first president of International Olympic Committee। और क्योंकि इनका योगदान इसके संगठन में बेहद महत्वपूर्ण था, सो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्यूचर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स इन द हिमालय अर्थात द फ्यूचर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स इन द हिमालय नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी बाबा आमटे, सी चंडी प्रसाद भट्ट, डी गौरा देवी। विद दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड फॉर्म्ड द दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल और सोसाइटी फॉर विलेज सेल्फ रूल अर्थात दशोली ग्राम स्वराज मंडल का गठन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शंस है ए मेधा पाटकर, बी कैलाश सत्यार्थी, सी किसान बाबूराव हजारे या जिन्हें हम अन्ना हजारे भी कहते हैं, और इज इट डी चंडी प्रसाद भट्ट। विद दिस द थर्ड क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ भारतीय जन संघ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी अर्थात भारतीय जन संघ भारतीय राजनीतिक दल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस है ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी LK अडवाणी, सी दीनदयाल उपाध्याय और इज इट डी नानाजी देशमुख। और आज का चौथा प्रश्न है व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व्ड अर्थात किस दिनांक को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं such as A 22nd June, B 23rd June, C 24th June और is it D 25th June। With this आज का पांचवा प्रश्न है Who is known as the father of modern Olympic Games अर्थात आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसका नाम याद किया जाता है। ऑप्शंस है ए थॉमस बाच, बी जैक्स रोक, सी
lose long or is it D Pere de Coubertin? With this आज का छठा और आखिरी प्रश्न है, When is the International Olympic Day observed? अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 23rd मार्च, बी 23rd अप्रैल, सी 23rd मई और इज द आंसर डी 23rd जून। और अब आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इनसे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी लगातार हमारे साथ शेयर करते रहिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।